services, that is CMS. CMS is the combination of Medicare and Medicaid services. Here, Medicare and Medicaid are two separate government firms managed by CMS. Okay, under CMS there are two government firms, Medicare and Medicaid. Medicare is for patient that is 64 years old, okay, and Medicaid is for citizens which are below poverty line. So there are two kind of insurance in the US. One is Medicare and one is Medicaid. Other than this, there are some private insurance also there. So these two are very important insurance in the US. In US, every person having the insurance as per age above 60 years, they will automatically covered under Medicare insurance. Okay, and the people which is in below poverty lines will be on the Medicaid. Next slide. So health insurance taken out to cover the cost of the medical care. What is insurance? So what anything medical services you are getting, that will be covered by the health insurance. So in USA, there is a general health insurance which includes four main things. One is regular checkup, second one is vision checkup, dental checkup, and hospital, that is durable medical equipment. What is regular checkup? Anyone have any idea? Anything, okay, anything for which we are going to see a doctor for regular health checkup, which comes under also the health insurance. So you are not going to pay anything to the doctor. All the fees of doctor will be paid by the health insurance. So health insurance is very important in USA. There is every person having the health insurance. So next slide. RCM includes four things. Okay. In previous class, we saw what is provider, what is payer, patient, and billing company. So provider, who is the provider? Doctor is our provider. Payer is nothing but our insurance company. Patient, anyone who is seeing the doctor for any issues, they are the patient. And billing company means after seeing the provider, your medical record will go into the coding company. After that, it will be in the billing company. So this is the main cycle of the RCM. Okay, RCM is the revenue cycle management. So it is generating the revenue in the four things: provider, payer, patient, and billing company. Next. Yes. You can also explain in Hindi somewhere. Students are requested. Okay. So मेडिकेयर और मेडिकेड जो दो इंश्योरेंस होते हैं, उसमें मेडिकेयर के पार्ट्स होते हैं, राइट? मेडिकेयर इंश्योरेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. Medicare having 4 types of insurance: Part A, Part B, Part C, and Part D. Okay. So 4 पार्ट में 4 डिफरेंट सर्विसेज कवर्ड होती है मेडिकेयर इंश्योरेंस में. फर्स्ट पार्ट ए जो होता है वो इनपेशेंट मेडिकल, जो भी हॉस्पिटल सर्विसेज होती है वो कवर्ड होती है. इनपेशेंट मीन्स अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है मोर देन 3 days, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनपेशेंट. आफ्टर 72 और 78 hours ऑफ ऑब्जर्वेशन सर्विस, पेशेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इनपेशेंट केयर में. सो इनपेशेंट अगर है तो वो सर्विस कवर्ड होगी मेडिकेयर के पार्ट ए में. ओके. नेक्स्ट स्लाइड. If you want a Part D, you must choose the Part D coverage that works with your Medicare health benefits. If your original Medicare, choose a standalone Part D plan. Okay, what is Part D? Part D क्या होता है? इसमें जो भी आपके प्रेस्क्राइब ड्रग्स होंगे, प्रेस्क्राइब
ड्रग्स आप जो खरीदेंगे एक मेडिकल से वो भी इसमें कवर्ड रहेंगे, मीन्स उसके लिए भी आपको पे नहीं करना है अगर आप पार्ट डी भी अपने मेडिकेयर में इंक्लूड करते हो। सो मेडिकेयर पार्ट ए इनपेशेंट सर्विस के लिए होता है, पार्ट बी आउट पेशेंट सर्विस के लिए होता है और पार्ट डी जो होता है वो होता है आपके प्रेस्क्राइब ड्रग मैनेजमेंट के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज पार्ट सी? नेक्स्ट, I think it will be in the previous slide. This one. Yeah, this one. Previous one. What is Part C? It is not a separate benefit. Part C is a part of Medicare policy that allows private health insurance companies to provide Medicare benefit. These Medicare private health plans such as HMO and PP are known as Medicare Advantage Plan. If you want, you can choose to get a Medicare coverage from Medicare Advantage Plan instead of through the original Medicare. अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पार्ट ए होता है इनपेशेंट के लिए, पार्ट बी होता है आउट पेशेंट के लिए और पार्ट डी होता है मेडिकेयर आई मीन प्रेस्क्राइब ड्रग सर्विसेज के लिए। तो इन पार्ट सी अगर आप चूज करते हो तो इसमें इनपेशेंट और आउट पेशेंट दोनों भी इंक्लूड होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप पार्ट ए, पार्ट डी या पार्ट सी क्या लेना चाहते हो। यू कैन गेट एनीथिंग, पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी, okay, as per your convenience. So next slide. Next. Part D. See, Medicare Part D is the outpatient prescription drug insurance, is a part of Medicare that provides outpatient prescription drug coverage. It means हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको प्रेस्क्रिप्शन देता है, वो प्रेस्क्रिप्शन से हम दवाइयाँ लेते हैं फार्मेसी से, एंड दैट फार्मेसी हमसे पैसा नहीं लेगी, आपका जो भी पैसा रहेगा वो इंश्योरेंस कवर करेगा, ओके, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ। और जो भी आपके प्रेस्क्रिप्शन होंगे, प्रेस्क्रिप्शन कब देता है डॉक्टर? जब आप आउट पेशेंट हो, आपने सिर्फ ओपीडी में डॉक्टर से विजिट किया, आपको डॉक्टर ने एक प्रेस्क्रिप्शन दिया, आप वो लेके कहाँ जाते हो? फार्मेसी में जाते हो। इन दैट केस पार्ट डी वर्क्स, ओके। अगर आप इन पेशेंट हो तो वहां पर पार्ट डी आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ चेकअप। अब हम सबसे पहले डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, डायरेक्टली हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, देन रिसेप्शनिस्ट हमारे से विजिट करती है, देन हम उसको इंश्योरेंस की कॉपी प्रोवाइड करते हैं, देन विजिट टू डॉक्टर एंड डॉक्टर विल डायग्नोस एंड प्रोवाइड अ solution. So this is a cycle of appointment with the doctor and the process of checkup. Next. Next. So आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया एंड आफ्टर दैट आप उसने अपना इंश्योरेंस कार्ड भी रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। तो आफ्टर दैट उसके बाद चालू होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का प्रोसेस, ओके। सबसे पहला होता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी? आपके जो इंश्योरेंस कार्ड में डिटेल है, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, आपका प्लान है, आई मीन आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे लेगी वो सारे डेमोग्राफिक एंट्री करेगी, ठीक है। वहां पर हमेशा दो पार्ट होते हैं, दो टाइप के फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है इन पेशेंट के लिए और एक फॉर्म होता है आउट पेशेंट के लिए। इन पेशेंट का फॉर्म होता है CMS 1500 और आउट पेशेंट का फॉर्म होता है UB04। विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट डेमोग्राफिक होने के बाद में आपका सारा बेसिक डिटेल वो वहां पर एंट्री करेगी। उसके बाद में वो फॉर्म जाएगा मेडिकल कोडिंग में विथ योर मेडिकल रिकॉर्ड, ओके। देन मेडिकल कोडिंग क्या करेंगे? वहां पर चार्ज एंट्री करेंगे, मीन CPT एंड ICDs एंटर करेंगे। After entering of CPT and ICDs, that claim will be goes to the payment posting. Payment posting means billing department. There are 3 departments in medical coding. First is medical coding,
next is billing, and third is account receivable. Account receivable always work in the night shift because they have to contact the insurance company in the USA. So only in the night AR will work. So after charge entry payment posting होने के बाद आपका क्लेम कहाँ जाएगा? AR के पास, और AR क्या करेगा? पेशेंट कॉलिंग करेगा. इट मीन्स वो कॉल करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, पेशेंट के बारे में डिटेल देगा और इंश्योरेंस कंपनी से जो भी रेवेन्यू है वो अपना जनरेट करवाएगा कंपनी के लिए. तो ये एक बेसिक प्रोसेस है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की. और नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक एंट्री करेंगे. तो फर्स्ट इज क्या, वो डेमोग्राफिक एंट्री में सबसे पहले क्या करेगी? आपका नाम डालेगी, आपका एड्रेस, देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका इंश्योरेंस टाइप कौन सा है, आपका पॉलिसी नंबर एंड आपका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो भी है वो सारे डेमोग्राफिक में एंट्री करेगी. देन नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ चेकअप. अब चेकअप कब होता है? व्हेन you give insurance card to a receptionist, she or he will do the patient demographics. All the entries will be done by the receptionist. Then problem is also known as the diagnosis and solution is the procedure step taken by the doctor. सबसे पहले डेमोग्राफिक एंट्री होगी, देन आप अपने डॉक्टर को देखोगे, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस और सॉल्यूशन देगा आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड. देन आगे की प्रोसेस कौन करेगा? डॉक्टर. आफ्टर द सॉल्यूशन योर क्लेम विल बी क्रिएटेड विच इंक्लूड डेट ऑफ सर्विस. मतलब जिस दिन तुमने डॉक्टर से विजिट किया वो क्या होता है? डेट ऑफ सर्विस. उसको हम लोग डॉस बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर डॉक्टर ने परफॉर्म किया है. नेक्स्ट डायग्नोसिस एंड चार्जेस. सो दिस इज द बेसिक स्टेप व्हेन वी आर गोइंग फॉर द चेकअप. नेक्स्ट, why do we need the coding? Medical billing and coding workers are the healthcare professionals in the charge of processing patient data such as treatment record and related insurance information. Medical insurance billers and coders are tasked with the coding a patient diagnosis along with the request for payment from the patient insurance company. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेडिकल कोडर क्या करेंगे? डायग्नोसिस के कोड एंटर करेंगे. आफ्टर एंटरिंग द कोड वो क्लेम कहाँ जाएगा? मेडिकल बिलिंग डिपार्टमेंट में. बिलिंग डिपार्टमेंट वालों का काम क्या है? उस मेडिकल क्लेम के ऊपर चार्ज एंट्री करना. मीन्स एज पर उसकी जो भी प्रोसीजर परफॉर्म हुई है उसकी चार्ज एंट्री इन द डॉलर वैल्यू करना किसका काम है? मेडिकल बिलिंग का. वो अपने सॉफ्टवेयर में सारा क्लेम जनरेट करेंगे, फाइनल अमाउंट वहां पर डालेंगे एंड देन वो क्लेम किसको ट्रांसफर करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट को, मीन्स AR डिपार्टमेंट को. देन नेक्स्ट, medical coding is the transformation of healthcare diagnosis, procedures, medical services and equipment into a universal medical alphanumeric codes. What is the process in medical coding? हम लोग क्या करते हैं मेडिकल कोडिंग में? एक मेडिकल रिकॉर्ड है हमारे पास में, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस के कोड्स में, देन प्रोसीजर के कोड्स में, मेडिकल सर्विस जो भी दिया हुआ है उसको भी हम लोग कोड में कन्वर्ट करेंगे एंड इक्विपमेंट को भी हम लोग एक अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में कन्वर्ट करेंगे. एज वी सॉ प्रीवियसली ना, CPT टाइप 1, 2 हिप्टिक कोड्स, so all will be entered in that medical record. So latest version of medical coding is the ICD-10. हम लोग पहले कौन सा यूज कर रहे थे? ICD-9 जो कि सिर्फ न्यूमेरिक कोड्स थे, लेकिन जब वो मॉडिफाइड हुआ तो ICD-10 CM बना. देन ICD-9 कब तक यूज हो रहा था? अक्टूबर 14, 2015 तक. उसके बाद ICD-10 आफ्टर अक्टूबर 15, 2015 से स्टार्ट हुआ है. इट वॉज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय WHO. कौन मेंटेन करता है? ये हमने पहले भी क्लास में देखा था कि वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ICD को डेवलप और मेंटेन करने का काम करता है. USA CMS मेक अ गाइडलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और USA में CMS जो होता है, व्हाट इज द CMS? सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज
जो भी चेंजेस है गाइडलाइन में या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो सारे काम कौन करता है? सीएमएस डिपार्टमेंट। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट है। Your voice is low, ma'am. Now it is clear. Yes, but little bit low. Means earlier it is Okay. okay, अब right? मे And बी सम now नेटवर्क it is understandable. इशू। Okay, wait. Maybe some network issues are there. Okay, go ahead. Okay. Why we code? हम लोग क्यों कोडिंग करते हैं? Okay. Take a step back, and this is suddenly a lot of very specific information, and that just for relatively simple doctor visit. Okay. डॉक्टर विजिट किया हम लोगों ने। अब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, या तो किसी कॉम्प्लिकेटेड इंजुरी को लेके जाएगा, किसी सिकनेस को लेके जाएगा, या फिर ऑक्यूलर इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू देयर डायबिटीज। आई मीन डायबिटीज है तो उससे रिलेटेड कंडीशन भी पेशेंट को होगी। As injuries, condition, illness get more complex, the amount of data that needs to be conveyed to insurance company increases significantly. जितनी सीवियर कंडीशन होगी, ओके, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उस केस की, आई मीन उस पेशेंट की बढ़ती जाएगी। तो जितना कॉम्प्लेक्स केस रहेगा उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए डॉक्टर के लिए। तो ऑल द डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स जो रहेगी वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में शेयर करना नेसेसरी होता है। किसको? कोडिंग कंपनी को। तो तभी डॉक्टर के थ्रू जब कोडिंग कंपनी के पास डिटेल्स आएंगी तभी कोडिंग वाले क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल सीडीसी, there were over 1.2 billion patient visits in the past year. That's a state that include a visit to physician offices, hospital outpatient facilities, and emergency rooms. Okay, if there were just 5 pieces of coded information per visit, which is most almost unrealistically low estimate, that be 6 billion individual pieces of information that needs to be transferred every year in a system loaded with data. Medical coding allows for efficient transfer of huge amount of information. It means according to CDC क्या बोल रहा है कि 1.2 बिलियन पेशेंट पास्ट ईयर में डॉक्टर से विजिट किए थे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा डेटा जो है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसको जाना चाहिए? मेडिकल कोडिंग कंपनी को, ताकि उस बेसिस पे, वो डेटा के बेसिस पे वो सारे अमाउंट, रेवेन्यूज वो इंश्योरेंस कंपनी से जनरेट करके दे सके डॉक्टर के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्यों करते हैं कोडिंग? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और ये सारा एक साइकिल क्या होता है? रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, coding also allows the uniform documentation between medical facilities. The code of streptococcal sore throat is the same in the Arkansas as it is in the Hawaii. ओके, कोड जो है ये इंटरनेशनल रहेंगे सारे जगह पे। अगर I10 हाइपरटेंशन का कोड है तो हाइपरटेंशन का कोड I10 आपको इंडिया में भी मिलना चाहिए, और वही कोड आपको कहाँ मिलना चाहिए? यूएसए के दूसरे सिटीज में, कंट्रीज में भी आपको मिलना चाहिए। आफ्टर दैट, फाइनली कोडिंग अलाउज एडमिनिस्ट्रेशन टू लुक एट द प्रिवेलेंस and the effectiveness of treatment in their facility. This is especially important to large medical facilities like hospitals, like government agencies tracking, say, the incidence of certain disease. Medical facilities can track the efficiency of their practice by analyzing. कोडिंग का काम क्या है? allows the administration. It means जो भी वो एडमिनिस्टर कर रहा है, पेशेंट के साथ जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किससे उसके इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, तो सारे डिटेल्स किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, एज पर द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड, रेवेन्यू जनरेट होगा किसके लिए? डॉक्टर के लिए। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस, लेट्स टेक अ लुक ऑन द 3 टाइप्स ऑफ कोड। ओके, अभी जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, सीपीटी, आईसीडी एंड हेप्टिक कोड,
तो अभी हमको वो देखना है। नेक्स्ट, next slide. Okay, here the types of coding. What is the types of coding? CPT code, HIPIC code, DX code and modifiers. Okay, CPT code is the current procedure terminology, is a 5-digit code. For every procedure there is a specific code which is a 5-digit. Next is the HIPIC code. HIPIC code is for medical durable equipment which is provided to the patient, which is healthcare common procedure coding system. Then DX code is nothing but the ICD coding. एक पर्टिकुलर क्लेम में आपके पास में 2-4 कंडीशन है कि आपको डायबिटीज है, नेक्स्ट है पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उसके अलावा चेस्ट पेन है, तो वहां पर 3 टाइप के डीएक्स होंगे। डीएक्स कोड इज नथिंग बट द आईसीडी। ओके, आईसीडी को ही हम लोग डीएक्स कोड बोलते हैं। तो एज पर मेडिकल रिकॉर्ड अगर 3 कंडीशन है तो आपको 3 कंडीशन वहां पर डालना पड़ेगा। I10, then chest pain का ICD, then E11.9 for diabetes. Okay, then modifiers. Modifiers क्या होते हैं? Modifiers किसी भी प्रोसेस का स्पेसिफिसिटी बढ़ाते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको फ्रैक्चर ट्रीटमेंट दिया है, ओके, आपके लेफ्ट या राइट हैंड में फ्रैक्चर है, तो अगर फ्रैक्चर की सीपीटी है समझ लो 23040, तो आपको अगर मेंशन करना है कि प्रोसीजर लेफ्ट में परफॉर्म हुई है या राइट में, इन दैट केस मॉडिफायर वर्क। मॉडिफायर क्या करते हैं? प्रोसीजर को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। वो डिनोट करते हैं कि प्रोसीजर एक्चुअली कहाँ परफॉर्म हुई है। अगर फ्रैक्चर लेफ्ट में है तो आपको एलटी मॉडिफायर यूज करना है, अगर राइट में है तो आपको आरटी मॉडिफायर यूज करना है। अदर देन दिस वहां पर बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। अभी बेसिक आपको मॉडिफायर का मतलब ये पता होना चाहिए कि मॉडिफायर कैसे वर्क करते हैं। सो इट विल डिनोट द लेटरलिटी। फर्स्ट इट विल डिनोट द लेटरलिटी एंड इट मॉडिफाइज द प्रोसीजर। नेक्स्ट स्लाइड। कोडिंग ऑल्सो सॉरी दिस वन, the Healthcare Common Procedure Coding System, HIPIC, often pronounced by its acronym HIPIC, it is a set of healthcare procedure codes based on the American Medical Association current procedure terminology. This is on the for HIPIC code there is a different book. Okay, so it comes under the CPT only, मतलब ये CPT का ही पार्ट है, लेकिन HIPIC कोड अल्फा न्यूमेरिक होते हैं और सीपीटी सिर्फ न्यूमेरिक होती है। अल्फा न्यूमेरिक में वो ए या टी कोड से चालू होंगे और सीपीटी हमेशा न्यूमेरिक का नंबर से ही चालू होगी। नेक्स्ट, इट इज ऑफ 5 डिजिट एंड कुड बी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेट विल बी द फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फाबेटिक रहेगा। यूज फॉर द पार्ट है इनपेशेंट सर्विसेज, ये हमेशा इनपेशेंट सर्विसेज के लिए ही यूज होता है HIPIC कोड। नेक्स्ट स्लाइड। Then CPT code. A CPT is the current procedure terminology, is a medical code is a medical code set that used to report medical, surgical, and diagnostic procedure and services to entities such as physicians, health insurance companies, and accreditation organizations. ओके, सीपीटी कोड क्या होता है? ये न्यूमेरिक कोड है जो हमेशा मेडिकल में सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज होता है। जैसे फ्रैक्चर ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया 23040 अगर सीपीटी है तो वो सीपीटी उस मेडिकल रिकॉर्ड में हमको एंटर करना है जहां पर प्रोसीजर परफॉर्म हुई है। इट इज ऑफ 5 डिजिट एंड कुड बी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, ऐसा लिखा हुआ है, बट अल्फा न्यूमेरिक सीपीटी कोड होता नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ओके, ओनली न्यूमेरिक कोड इज अ सीपीटी कोड यूज फॉर मेडिकेयर पार्ट बी एंड आउट पेशेंट सर्विसेज। मेडिकेयर पार्ट बी क्या होता है? आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए यूज होता है। और मेडिकेयर पार्ट ए में क्या यूज होता है? जो इन पेशेंट सर्विस के लिए, उसमें हम लोग HIPIC कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट, modifiers, code modifier billing guidelines.
Code modifier helps further describe a procedure code without changing the definition of code. अभी मैंने आपको बताया कि अगर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हो रहा है लेफ्ट में या राइट में हो रहा है तो ये कोड का डिस्क्रिप्शन चेंज कर देगा क्या? नहीं, मॉडिफायर आपको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेगा कि आपकी प्रोसीजर लेफ्ट में परफॉर्म हुई है या राइट में परफॉर्म हुई है. So modifier always helps for to describe a procedure in a more specificity. Modifier codes are of 2 digits, either alpha or the numeric. ये हमेशा 2 digit codes ही रहेंगे, या तो ये न्यूमेरिक रहेंगे या तो फिर अल्फा न्यूमेरिक्स रहेंगे, सॉरी, या तो अल्फा रहेंगे या तो फिर न्यूमेरिक रहेंगे. Then it's actually inform that where is the प्रॉब्लम इज. इट मीन्स ये इन्फॉर्म करते हैं कि प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में थी या राइट साइड में थी. ये एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है मॉडिफायर. नेक्स्ट, diagnosis code. Diagnostic coding is the translation of written description of disease, illness and injuries into the code from a particular classification. In medical classification, diagnosis codes are used as a part of clinical coding process alongside intervention codes. डायग्नोसिस कोड हमने पहले भी देखा. अभी मैंने बोला कि अगर डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहा है 4 से 5 कंडीशन लेके जा रहा है तो हमको उस 4 या 5 कंडीशन के लिए पर्टिकुलर आईसीडी उस क्लेम में एंटर करनी है. दीज आर द 3 to 5 डिजिट एंड डेसिमल पॉइंट्स एंड आर ऑफ द ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज. हमने लास्ट सेशन में आईसीडी का पैटर्न देखा था. वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं विथ उसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है. डेसिमल पॉइंट के बाद में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है. तो इसका मिनिमम नंबर होता है 3 to 5 डिजिट. ओके, नेक्स्ट, मेडिकल कोडिंग का पार्ट कहाँ खत्म होता है? आपने आईसीडी एंटर कर दिया, आपने प्रोसीजर एंटर कर दिया, आपने मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, आपका क्लेम अभी पूरा रेडी हो चुका है. अब आप उसको कहाँ भेजोगे? बिलिंग डिपार्टमेंट में. मेडिकल बिलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको चार्ज एंट्री भी बोला जाता है. मेडिकल बिलर्स और कोडर्स दोनों का काम क्या है? टास्क विद द कोडिंग. मेडिकल कोडिंग वाले क्या करेंगे? उसमें डायग्नोसिस एंटर करेंगे, उसमें सीपीटी हिपिक जो भी है सारे कोड्स को एंटर करेंगे. देन वो पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे किससे? मेडिकल बिलर से. मेडिकल बिलर पेमेंट को जनरेट करेगा. देन उसको कहाँ भेजेगा? अकाउंट रिसीवेबल सेक्शन में. अकाउंट रिसीवेबल सेक्शन विल कॉन्टेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके वो पेमेंट रिक्वेस्ट करेगा. एंड देन रेवेन्यू जनरेट होगा किसके लिए? डॉक्टर के लिए. इट इंक्लूड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड चार्जेस. इसमें सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस एंटर करना है, देन ट्रीटमेंट क्या हुआ है वो एंटर करना है, और बिलिंग वाले क्या करेंगे? बिलिंग डिपार्टमेंट के लोग उसमें चार्जेस एंटर करने का काम करेंगे. तो दिस इज द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट प्रोसेस to generate a revenue. Next, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट आउट पेशेंट है तो उसके लिए दूसरा फॉर्म यूज होगा. आई मीन डेमोग्राफिक एंट्री आउट पेशेंट फॉर्म में होगी, और अगर पेशेंट इन पेशेंट है तो डेमोग्राफिक एंट्री इन पेशेंट के फॉर्म में होगी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लेम फॉर्म. ओके, फर्स्ट इज SCFA. SCFA is nothing but the Healthcare Finance Administration. Okay, that is CMS 1500. ये आउट पेशेंट सर्विस का फॉर्म होता है. ओके, CMS 1500. अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आउट पेशेंट सर्विस ले रहे हो तो आपकी रिसेप्शनिस्ट आपके लिए आउट पेशेंट का फॉर्म भरेगी, जिसको हम लोग CMS 1500 बोलते हैं. और अगर आप इन पेशेंट होते हैं, अगर कोई पेशेंट इन पेशेंट होता है तो उन लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे? UB04. दैट इज अ मेडिकेयर पार्ट ए फॉर्म फॉर इन पेशेंट services or hospital services. So there are 2 types of form. CMS 1500 is for outpatient and UB04 is for inpatient. That is also called CMS 1450.
Next. Then what are the coding certification we can take? Okay, for certification, first is the CPC, is the Certified Professional Coder. CPC is for outpatient services. Okay, आउटपेशेंट सर्विसेज का होता है और ये सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? AAPC प्रोवाइड करता है इन यूएसए। पार्ट बी, ये हमेशा आउटपेशेंट सर्विसेज के लिए होता है सीपीसी सर्टिफिकेशन। देन CPCH इज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हॉस्पिटल, इट इज फॉर इनपेशेंट सर्विसेज, दैट इज पार्ट ए। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड बाय AAPC, ये भी AAPC का ही सर्टिफिकेशन होता है बट is for inpatient services. Then CCS is a certified coding specialist, certification provided by AHIMA. सिर्फ ये एक अहिमा का सर्टिफिकेट होता है, अदरवाइज ये जो सीपीसी के सर्टिफिकेशन होते हैं ये एएपीसी ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो इनमें से आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट, this is a pattern of form. Show that form now, just one. See, there are 32 blocks in that form. तो इसमें आपका डेमोग्राफिक एंट्री होता है। ये क्लियर नहीं है फॉर्म, बट इस टाइप का आपका फॉर्म जो है वो रिसेप्शनिस्ट फिल करती है बिफोर सीइंग द डॉक्टर। इसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर से लेके आई मीन सारे डिटेल्स, आपके पास कौन सा प्लान है, आपका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर क्या है, आपका आई मीन इंश्योरेंस क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, everything will be entered in this form before you are going to see the provider. Okay, this is the CMS 1500 form. Or next form, next slide. एक बार आपका फॉर्म जनरेट हो गया, उसमें सारी डिटेल्स एंटर हो चुके हैं। अब आप डॉक्टर को आई मीन डॉक्टर से विजिट करते हैं, डॉक्टर आपका मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट करता है। ऑन दैट मेडिकल रिकॉर्ड कोडर्स का काम क्या होता है कि वो उसमें डायग्नोसिस, प्रोसीजर कोड, सीपीटी, हिप्टिक्स कोड एंटर करे। आफ्टर दैट वो क्लेम कहाँ जाता है? मेडिकल बिलिंग डिपार्टमेंट पे। In earlier days, when claims were sent to the insurance companies called the filing, now it is called the electronic transmission और e-filing। पहले वो क्लेम कहा जाता था इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन अब वो इंश्योरेंस कंपनी में ना जाकर वो जाता है बिलिंग डिपार्टमेंट में, और बिलिंग डिपार्टमेंट वालों उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। इट मीन्स हमारे पास जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चार्ज एंट्री करके ई फाइलिंग, जिस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या फिर ई ट्रांसमिशन प्रोसेस बोलते हैं, वो काम करता है कौन? बिलिंग डिपार्टमेंट। इट मीन्स वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें हर पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए चार्जेस की एंट्री करता है, एंड देन दे विल सेंड दैट क्लेम टू द AR डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, अभी तक का सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? सबसे पहला हमने देखा मेडिकल कोडिंग। एक कोडर का क्या काम है? डायग्नोसिस एंटर करना, सीपीटी एंटर करना, हिप्टिक कोड एंटर करना एक पर्टिकुलर मेडिकल रिकॉर्ड में। देन बिलिंग का काम क्या है? चार्ज एंट्री करना। पर्टिकुलर डायग्नोसिस कोड के लिए पर्टिकुलर डॉलर वैल्यू है, वो डॉलर वैल्यू एंटर करने का काम किस तक था? बिलिंग डिपार्टमेंट तक। अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल मीन्स AR डिपार्टमेंट जो कि नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं, वो उनका काम क्या है? ओके, now the aging of your AR is crucial to watch because the older bill get the harder and the more costly they become to collect. किसी भी क्लेम के लिए एक टाइमली फाइलिंग लिमिट होती है। ओके, अराउंड 120 विद इन 120 डेज कोई भी क्लेम का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। अगर वो उससे लेट हो रहा है देन रेवेन्यू विल बी लॉस। तो हमको रेवेन्यू लॉस करवाना है क्या? नहीं। तो हमको किसी भी चीज के जो भी बिल है
उसको पुराने नहीं होने देना है, उसको तुरंत में बिलिंग करके एआर डिपार्टमेंट को देना है, ताकि एआर डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस करे और इंश्योरेंस कंपनी से रेवेन्यू जनरेट करवा सके अपने डॉक्टर के लिए। देन व्हेन योर एआर स्लिप्स एंड you have a very large backlog or balance, it can seems like you will never be able to tackle it. It means वो क्या बोल रहा है कि अगर एआर डिपार्टमेंट के हाथ से कोई क्लेम छूट गया, ओके, तो बहुत सारे बैकलॉग क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारा बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब इट सीम्स लाइक यू विल नेवर बी एबल टू टैकल इट। इट मीन्स उस टाइम लिमिट के अंदर में आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हो, आप इंश्योरेंस से पैसा नहीं निकाल के ला पा रहे हो अपने डॉक्टर के लिए, तो इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर द प्रोवाइडर। If patient insurance eligibility is not being verified or you are not connecting with the patient prior to them presenting to the office, it creates a massive amount of work on the back end to try and resolve open AR or open claims. अगर आपने proper insurance eligibility patient से verify नहीं हो रही है, okay, या आप properly patient से connect नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइम पे क्या होगा, एक massive amount जो है वो back end पे जमा हो जाएगा, और वो जमा होने के बाद में क्या होगा कि बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट होता है, तो हम उसको एक दिन में रिलीज कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वो पूरा प्रेशर किस पे आएगा? अकाउंट रिसीवेबल पे। इसीलिए हर क्लेम का एक टैट होता है, टैट मीन्स टाइमली फाइलिंग लिमिट होता है, टीएफएल जिसको हम लोग बोलते हैं। उस टाइम फाइलिंग के अंदर में ही एक क्लेम का पैसा वापस प्रोवाइडर को आना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। अगर वो उससे लेट होता है देन इट विल बी अ लॉस फॉर द प्रोवाइडर। ओके, नेक्स्ट schedule. A fee schedule is a complete listing of fees used by the Medicare to pay doctors or other providers, suppliers. This comprehensive listing of fee maximum is used to reimburse a physician and or other provider on a fee for a service. Fee schedule means fee schedule किसी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या प्रोवाइडर के पास जाते हैं, या फिर डॉक्टर हमको कोई सर्विस देता है या फिर कोई सप्लाईज देता है, लाइक आपको कोई वॉकिंग स्टिक देता है या फिर व्हील चेयर देता है किसी पेशेंट को, तो दिस इज अ कंप्रेहेंसिव लिस्टिंग ऑफ फीस। ओके, वहां पर एक फीस जनरेट होना चाहिए हर एक इक्विपमेंट के लिए, हर एक डॉक्टर के सर्विस के लिए। तो फी फॉर द सर्विस, प्रोवाइडर कैसे काम करता है, हर एक चीज के लिए एक फीस डिसाइड करके रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीस शेड्यूल। पर्टिकुलर सर्विस के लिए पर्टिकुलर फीस जो भी डिसाइडेड है उस वे में एक डॉक्टर वर्क करता है, दैट विल बी कॉल्ड अ फीस शेड्यूल। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल, the aggregate of money owed to the healthcare practice by all patients and or insurers. Account receivable means AR. AR का काम क्या है? जो भी पैसा है उसको जनरेट करना है कहाँ से? हेल्थ केयर प्रैक्टिस बाय द पेशेंट और बाय द इंश्योरेंस। या तो वो पेशेंट से कांटेक्ट करके रेवेन्यू जनरेट करे या फिर वो इंश्योरेंस से कांटेक्ट करके पैसे जनरेट करे। ये काम किसका है? अकाउंट रिसीवेबल का। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं, बिकॉज जब हमारे यहाँ नाइट होती है तो यूएसए में डे होता है, वहां पे डे में सारे इंश्योरेंस कंपनी ओपन होते हैं, इसलिए एआर लोग को उनके दिन के हिसाब से काम करना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल वर्क फॉर मनी ओनली टू जनरेट अ रेवेन्यू फॉर द प्रोवाइडर। नेक्स्ट, insurance. A patient must have insurance as he or she can have multiple insurance also. Okay, एक पर्टिकुलर पेशेंट के मल्टीपल इंश्योरेंस भी हो सकते हैं। फर्स्ट इंश्योरेंस इज द प्राइमरी इंश्योरेंस जिसको हम बोलेंगे, सेकंड को सेकेंडरी इंश्योरेंस एंड थर्ड इज द टर्शरी इंश्योरेंस। इन सम केसेस आपने कोई सर्विस ली डॉक्टर से, ओके, उसका अगर डॉलर वैल्यू है $450, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके, तो प्राइमरी अगर इंश्योरेंस आपका $450 में से $400 ही कवर कर पा रहा है,
आपका प्राइमरी इंश्योरेंस $400 पे कर देगा, बट बचा $50 कौन पे करेगा? सो दैट विल बी कवर्ड बाय योर सेकेंडरी इंश्योरेंस। तो ये सारे इंश्योरेंस है, आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कितने भी इंश्योरेंस आप ले सकते हो। ओके, सो इट विल वर्क एज पर देयर लिमिट। प्राइमरी इंश्योरेंस अगर आपका $500 तक वर्क करता है तो वो $500 तक का ही पे किसको देगा? आपके प्रोवाइडर को, और रिमेनिंग जो भी अमाउंट है that will be paid by secondary insurance or by the tertiary insurance. So one person can have a 1, 2 or 3 or many multiple insurance. Next, is co-insurance. If a patient have more than one insurance, okay, एक इंश्योरेंस के अलावा पेशेंट के पास 2 या 3 इंश्योरेंस है तो उसको हम लोग को इंश्योरेंस भी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी इंश्योरेंस और टर्शरी इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस मीन्स दैट वर्क्स विद द प्राइमरी इंश्योरेंस। अगर प्राइमरी इंश्योरेंस कोई सर्विस कवर नहीं कर रहा है उस टाइम पे को इंश्योरेंस कवर करेगा। ओके, देन को-पे, पेशेंट आल्सो नीड्स टू पे इन दिस टाइप ऑफ पे। को-पे क्या होता है? कोई कोई इंश्योरेंस, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की फीस है अगर $100, ओके, 100 में से जो कोपे का अमाउंट है वो $10 है। इन केस, ओके, ये सारा इंश्योरेंस से डिसाइड होता है। किसी भी इंश्योरेंस का कोपे अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। ओके, तो ये कोपे अमाउंट किसको पे करना होता है? पेशेंट को। कोपे अमाउंट में कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो कंपनी डिसाइड करती है, दैट विल बी पेड बाय द पेशेंट। अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारा अगर फीस हो रहा है $100, so $10 will be your copay, so you need to pay that $10 at the time of visit to the doctor. Okay, remaining amount will be paid by your insurance or co-insurance. Okay, co-insurance क्या होता है? इन co-insurance the amount which has yet to pay by the secondary insurance company apart from the amount paid by the primary insurance is called the co-insurance. अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर प्राइमरी इंश्योरेंस से कुछ अमाउंट बच जाता है पे करने के लिए तो वो कौन पे करेगा? को इंश्योरेंस पे करेगा। एंड को पे अमाउंट नीड टू पे बाय द पेशेंट, जो अमाउंट पेशेंट पे करेगा विच विल बी डिसाइडेड बाय योर प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी, so you have to pay that amount, patient have to pay that amount at the time of the visit. तो ये दो चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही है कि को इंश्योरेंस क्या होता है? प्राइमरी इंश्योरेंस के अलावा अगर पेशेंट के पास सेकेंडरी, टर्शरी इंश्योरेंस है तो दैट विल बी अ को इंश्योरेंस। द अमाउंट विच विल बी रिमेन्ड बाय द for primary insurance that will be paid by the co-insurance, and co-pay is the amount decided by the insurance company, so that will be a $10 or $20, so the patient will be responsible to pay that amount at the टाइम ऑफ विजिट। जब हम डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं तो कोपे कौन पे करेगा? पेशेंट पे करेगा। ओके, नेक्स्ट is billed amount. Billed amount क्या होता है? A billed amount is the amount which was charged by the doctor for the treatment. हम डिसाइड करेंगे क्या कि billed amount क्या है? वो डॉक्टर हमको डिसाइड करके देगा डॉक्टर ने क्या सर्विस प्रोवाइड किया है और उसका billed amount क्या है। तो डॉक्टर डिसाइड कौन करेगा? बिल्ड अमाउंट को डॉक्टर डिसाइड करेगा। देन व्हाट इज अलाउड अमाउंट? अलाउड अमाउंट क्या होता है? is the amount fixed by CMS to pay the doctor for his service. बिल्ड अमाउंट तो डॉक्टर ने दे दिया कि एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए उसने $100 चार्ज किया है, लेकिन अलाउड अमाउंट जो कि CMS फिक्स करता है, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड। ओके, तो मेडिकेयर और मेडिकेड के पास हर पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक अमाउंट है जिसको कि हम लोग अलाउड अमाउंट बोलते हैं। अगर डॉक्टर ने उस सर्विस के लिए $100 पे किया है और CMS ने डिसाइड किया है $80, ओके, तो $80 ही पे होगा उस डॉक्टर को पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एंड द रिमेनिंग अमाउंट किसको पे करना पड़ेगा? पेशेंट को पे करना पड़ेगा। तो डॉक्टर एक्सेस पे पैसा नहीं ले सकता इंश्योरेंस कंपनी से। जो इंश्योरेंस कंपनी अलाउड अमाउंट डिसाइड करेगी वही अमाउंट पे करना होगा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, टू द प्रोवाइडर।
अभी मैंने आपको बताया TFL क्या होता है। TFL टाइमली फाइलिंग लिमिट। ओके, देयर इज अ टाइम लिमिट टू फाइल एनी क्लेम। कोई भी क्लेम को फाइल करने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने ही टाइम में वो क्लेम फाइल होना ही चाहिए। डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट टाइम फ्रेम। ओके, मेडिकेयर का टाइम फ्रेम अलग होता है और मेडिकेड का अलग होता है। मेडिकेयर के लिए 1 साल होता है, 1 साल में आप अपना क्लेम फाइल करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लेकिन मेडिकेड के सिर्फ 2 महीना देती है, आई मीन 60 डेज। 60 डेज के अंदर आपका क्लेम फाइल हो जाना चाहिए और फाइल होने के बाद आपका इंश्योरेंस से पे भी डॉक्टर को मिल जाना चाहिए। सो Medicare having 1 year of timely filing limit and Medicaid having 60 days of timely filing limit. So commercial, इसके अलावा commercial जो है वो 6 month and can be vary from company to company. Medicare Medicaid क्या है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए 6 month और वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि उसका टाइमली फाइलिंग लिमिट कितना है। ओके, so there are 3 types of insurance in USA: Medicare, Medicaid and commercial insurance. Next, AR days are like from claim filing day to payment received day. AR days क्या होते हैं, जब क्लेम फाइल हुआ और क्लेम फाइल होने के टाइम से लेके तो पेमेंट कब रिसीव हुआ, वो जो एक टाइम फ्रेम होता है उसको हम लोग AR डेज बोलते हैं। एवरेज मेडिकेयर टू 18 to 24 डेज। अगर मेडिकेयर है पेशेंट तो उसको 18 से 24 दिन लगेंगे एक क्लेम का पेमेंट रिसीव होने के लिए। इफ वी डिडंट रिसीव द पेमेंट विद इन दीज डेज देन द इंश्योरेंस ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट मांगेगी कि क्यों वहां पर इतना लेट हो रहा है पेमेंट होने के लिए। तो वो सारे डिटेल कौन प्रोवाइड करेगा, डॉक्टर प्रोवाइड करेगा टू द इंश्योरेंस कंपनी, और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही डॉक्टर को पे होना चाहिए। नेक्स्ट, पेयर कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। अभी अपन ने देखा था पेयर 2 टाइप के हैं, एक मेडिकेयर जो कि फेडरल या तो गवर्नमेंट होता है और एक कमर्शियल पेयर होता है। ओके, फेडरल पेयर आर मेडिकेयर एंड मेडिकेड। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, मेडिकेयर अगर पेशेंट 60 के अबव है तो ऑटोमेटिकली वो मेडिकेयर के अंडर आता है, और बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो मेडिकेड में आता है। कंपनीज लाइक चैम्पर, ट्राइकेयर, चैम्पर आर द डिफेंस। तो ये कंपनीज जो होती है ये सारी फेडरल गवर्नमेंट कंपनीज है। और कमर्शियल पेयर्स कौन से होते हैं, इतना, सिग्ना, BCBS, USG नहीं है वो USC होना चाहिए, USC and Anthem. These are commercial payers. Okay, so there are 3 types of payers. Medicare, there are 2 types of main payers: Medicare and commercial. Government and commercial. In government, there are 2 types: Medicare and Medicaid. Okay, next slide. रीजन ऑफ नॉट रिसीविंग द पेमेंट। ओके, क्यों हमको इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट नहीं आता है, या तो वो डिनाइज के वजह से नहीं होता है, या तो क्लेम होल्ड पे जाता है, या फिर क्लेम पार्शियली पेड होता है। तो डिनाइज क्या होते हैं, अगर हमने इनकरेक्ट कोडिंग करा है किसी क्लेम में, ओके, तो वो इनकरेक्ट कोडिंग के वजह से जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो पे नहीं करता, और वो इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली कंपनी को क्या होते हैं, डिनाइल्स आते हैं। किसको, कोडिंग के पास। कोडिंग क्या करेगी कि डिनाइल क्यों आ रहा है, वहां पे मॉडिफायर मिसिंग हुआ है, यहाँ पर कोई प्रोसीजर गलत है, वहां पे कोई 2 प्रोसीजर के बीच में एडिट है जो साथ में हम लोग कोड नहीं कर सकते। तो वो सारा वापस से चेक करने का काम किसका रहेगा, मेडिकल कोडर का। कोडर डिनाइल्स पे वर्क करेगा, देन फिर से वो क्लेम कहाँ जाएगा, मेडिकल बिलिंग डिपार्टमेंट में, बिलिंग से AR में, और AR से इंश्योरेंस कंपनी में। आफ्टर दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर दैट होल्ड क्लेम। ओके, अगर डिनाइल आया है तो वो क्लेम होल्ड पे जाएगा, या फिर क्लेम पार्शियली पेड रहेगा, सारा पेमेंट नहीं आएगा। तो इन 3 केस में हमारे पास पेमेंट रिसीव नहीं होता है।
So explanation will be given by the इंश्योरेंस कंपनी इन ईच केस ऑफ नॉन पेमेंट. अगर डिनाइल आता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बड़ा सा लेटर भी साथ में देगी कि उसने डिनाई क्यों किया है, या फिर वहां मॉडिफायर मिसिंग हुआ है, जो भी रीजन है वो आपको लिख के वहां पर वापस क्लेम भेजेगी. आपको वापस उस पर वर्क करना है, देन फर्दर सेम प्रोसेस उस क्लेम पे परफॉर्म होगी. ओके, नेक्स्ट. Is receivable, it is a total value of claim filled in the dollar value. Okay, डॉलर वैल्यू में क्लेम एक जनरेट हो गया जो कि बिलिंग डिपार्टमेंट ने किया है. अब वही क्लेम कहा जाता है एआर में. अब टाइम फ्रेम फॉर्म अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज टू 120 डेज. अभी मैंने बताया था कि एक क्लेम के लिए 120 डेज लास्ट ऑप्शन होता है. उस टाइम फ्रेम के अंदर ही पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए एक डॉक्टर को फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. वी नीड टू क्लोज द एआर मैक्सिमम विद इन 90 डेज ऑफ क्लेम. 120 तो मैंने ज्यादा ही बता दिया. वो 3 मंथ्स के अंदर में क्लेम, कोई भी क्लेम क्लोज होना चाहिए फ्रॉम द एआर डिपार्टमेंट. नेक्स्ट. देन व्हाट इज ईओबी? ईओबी क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट. ओके, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में ईओबी सबसे पहले दिया जाता है. ईओबी में सारी चीजें दी हुई होती है कि आपकी कौन सी सर्विस उस इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होगी और कौन सी सर्विस कवर्ड नहीं होगी. तो दैट इज कॉल्ड ईओबी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट. ईओबी एक फॉर्म होता है. आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे, कोई फॉर्म भरोगे तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट का फॉर्म साइन करना पड़ता है कि जो सर्विस इंश्योरेंस में कवर होगी वही पैसा बाय इंश्योरेंस पे होगा, और जो सर्विस इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी वो पैसा पेशेंट को पे करना है. तो ईओबी, व्हाट इज ईओबी? इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट. देन नेक्स्ट इज ईआरए. ERA is the electronic remittance advice, is an electronic report in standard computer readable format sent by insurance company to provider as an explanation of payment and adjudication of the medical claim. ERA कौन भेजता है? इंश्योरेंस कंपनी. किसको? प्रोवाइडर को भेजती है, जिसमें सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं. उसने किस चीज के लिए पे किया है और कौन से सर्विसेज के लिए पे नहीं किया है. So ERA is the electronic remittance advice provided by the insurance company. Next. अब पेमेंट पोस्टिंग क्या होता है? डिटेल्स ऑफ ऑल पेमेंट डेटा कम्स इन पेमेंट पोस्टिंग. अभी कोडर ने कोड सेंटर कर दिया, अब वो क्लेम कहाँ जाएगा? बिलिंग डिपार्टमेंट में. बिलिंग डिपार्टमेंट वाले उसमें सारे चार्जेस की एंट्री करेंगे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेमेंट पोस्टिंग. उसके बाद प्रोसेस आता है अकाउंट क्लोजिंग. एक बार पेमेंट अपने को रिसीव हो गया एआर डिपार्टमेंट से, तो हम लोग क्या करेंगे? उस पेशेंट का अकाउंट क्लोज कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज कट ऑफ डेट. इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ कट ऑफ डेट so that we can check the monthly or annual amount income of the company. हम लोग एक कट ऑफ डेट रखते हैं हर कंपनी में. ओके, जैसे किसी का 15 होता है, किसी का 30 होता है, तो उस बीच में कितना अमाउंट प्रोवाइडर के लिए रिसीव हुआ है वो सारा हमको डिटेल निकालना होता है. दैट इज कॉल्ड कट ऑफ डेट. पेमेंट पोस्टिंग also include monthly closing amount. ओके, मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल बिल्ड अमाउंट कितना था, टोटल अलाउड अमाउंट कितना था, एंड टोटल राइट ऑफ अमाउंट कितना है. तो ये सारा जनरेट करने का काम किसका होता है? पेमेंट पोस्टिंग डिपार्टमेंट का. दैट इज अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट. नेक्स्ट. Patient AR. Normally, every citizen of USA have insurance policy, but many circumstances occurs where patient need to pay the amount. Okay, बहुत से टाइम पे क्या होता है, वहां पर हर किसी का इंश्योरेंस होता है, हर एक सिटीजन का, बट समटाइम्स पेशेंट को भी पे करना पड़ता है. कब? या तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोपे अगर है तो कोपे पेशेंट को पे करना पड़ेगा. अगर पेशेंट का इंश्योरेंस नहीं है तो नो इंश्योरेंस के बेसिस पे पेशेंट को पे करना होगा. नो कवरेज मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट. मैंने अभी बताया कि कौन सी सर्विस कवर्ड होगी और कौन सी नहीं होगी.
तो जो नॉन कवर्ड सर्विस है उसका पैसा पेशेंट को पे करना होगा। देन डिडक्टिबल्स मंथ ईयरली हम लोग कोई प्रीमियम भरते हैं किसी इंश्योरेंस का, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिबल्स। तो डिडक्टिबल्स भी भरने का काम किसका रहेगा? पेशेंट का। आउट ऑफ स्टेट कवरेज, अगर पेशेंट ने किसी स्टेट में सर्विस लिया है और ट्रीटमेंट लिया है दूसरे स्टेट में जाके, स्टेट ए का उसका इंश्योरेंस है, उसने सर्विस लिया स्टेट बी से, तो वो आउट ऑफ स्टेट सर्विस हो गई, वो स्टेट ए के इंश्योरेंस में कवर्ड होगी क्या? नहीं। ऐसे टाइम पे भी पेशेंट ही पे करेगा अगर वो आउट ऑफ स्टेट जाके सर्विस ले रहा है। बेनिफिट एग्जॉस्टेड मीन्स कोई बेनिफिट की एक टाइम लिमिट होगी, जैसे 120 डेज या 1 ईयर, उस टाइम फ्रेम के अंदर उसने सर्विस नहीं लिया है तो उसके बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसको वो सर्विस आफ्टर 1 ईयर मिलेगी क्या? नहीं। तो उसके लिए भी पेशेंट को ही पे करना है। वर्कर कंपनसेशन ऑल्सो नॉट कवर्ड बाय नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी। वर्कर कंपनसेशन पता है, जहाँ पर किसी कंपनी में पूरा वर्कर्स का इंश्योरेंस होता है, वहां पे अगर कोई वर्कर इंजर्ड हो चुका है तो वो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी क्या? नहीं, वो वर्कर कंपनसेशन से ही कवर होगा जो उसको उसकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इस केसेस में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पेशेंट को पे करना होता है the amount to the provider. Next, payment posting is a type of accounting entering details of payment from insurance companies. 6 things to look at during the payment posting. सबसे पहले हमको क्या देखना है जब हम पेमेंट पोस्टिंग करते हैं? पेमेंट एंटर्ड विद इन 1 day और लेस ऑफ रिसिप्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, कैलकुलेट राइट ऑफ, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल्स एंड पेशेंट पेमेंट। ये सारी चीजें देखनी होती है बिफोर पेमेंट पोस्टिंग कि पेमेंट एंटर हुआ है या नहीं 24 आवर्स के अंदर। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, कौन सी सर्विस कवर्ड है या नहीं। को इंश्योरेंस क्या है, को इंश्योरेंस कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कितने को इंश्योरेंस है, डिडक्टिबल कितना है ईयरली, और पेशेंट पेमेंट कितने लेने हैं पेशेंट से वो। ये सारे 6 थिंग्स हमको पहले देखना जरूरी है बिफोर पेमेंट पोस्टिंग। नेक्स्ट, copay. Copay is the partial amount need to be paid by the patient. No insurance if patient not carrying any insurance policy, that is no insurance. No coverage if insurance policy is not covering for that particular treatment, that is no coverage. Deductible, the amount you pay for covered health care services before your insurance plans start to pay with $2,000 deductibles. For example, you pay the first 2,000 okay of covered services by yourself. After you pay your deductible, you usually pay only a co-payment or co-insurance for the covered service. डिडक्टिबल क्या होता है? हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो पहले हमको लेने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। लाइक इंडिया में अगर हम LIC पॉलिसी भी लेते हैं तो हम कुछ 20-22 हजार रुपए पे करेंगे फॉर द सर्विस कवर करने के लिए। आफ्टर दैट ही आपको उसका कुछ अमाउंट कंपनी के तरफ से मिलेगा, लेकिन जो को पेमेंट है वो तो आपको पे करना ही है, जो डिसाइडेड करती है इंश्योरेंस कंपनी, और रिमेनिंग पैसा जो है वो कौन पे करेगा? को इंश्योरेंस। तो डिडक्टिबल इज नथिंग बट द ईयरली प्रीमियम पेड बाय द पेशेंट। नेक्स्ट, आउट ऑफ स्टेट कवरेज। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूएसए में डिफरेंट पॉलिसीज है। ओके, if it is possible you have an insurance policy insured under Texas state will not work on the Pennsylvania state. okay, अगर आपके पास में टेक्सास का इंश्योरेंस है और आप ट्रीटमेंट लेके जा रहे हो पेंसिल्वेनिया में, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका टेक्सास का स्टेट का जो इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट वाले आपके स्टेट में वर्क नहीं करेगा। ऐसे टाइम पे भी आपको इंश्योरेंस को पे करना है, किसको? पेशेंट को। Next, benefit exhausted. If the amount need to be paid, the doctor is crossing the insurance amount limit. In that case, patient need to pay the amount. अगर अमाउंट अभी मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी से एक्स्ट्रा जा रहा है, एग्जॉस्ट मीन ज्यादा हो रहा है
लिमिट से, तो वो जो लिमिट से एक्सीड अमाउंट होता है वो भी कौन पे करता है? पेशेंट। वर्कर कंपेंसेशन क्या होता है? इट इज अ पॉलिसी प्रोवाइड बाय द कॉर्पोरेट टू देयर एम्प्लॉइज, दे हैव देयर डिफरेंट क्राइटेरिया। एक पॉलिसी है जो कि सिर्फ उसके एम्प्लॉइज को मिलेगी और उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ किसके अंडर आएंगे? वर्कर कंपेंसेशन के अंदर। नॉर्मल इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट, PHI and the HIPAA. So, PHI is a protected health information. According to the US Department of the Health and Human Services, protected health information is individually identifiable information. किसी भी पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। सो इट इज अ बेसिक एक्ट इन द मेडिकल कोडिंग कंपनी टू प्रोटेक्ट द in details of the patient. So protected health information is the one thing, and next is Health Insurance Portability and Accountability Act 1996 में ये डेवलप हुआ था। United States legislation that provide data privacy and security provision for safeguarding medical information. जो भी पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो सेफ होना चाहिए, उसके लिए हिप्पा एक्ट लाया गया था 1966 में। जो भी हिप्पा के अगेंस्ट जाएगा, मीन्स कोई भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन लीक करेगा तो उस पर हिप्पा एक्ट के थ्रू जो भी उसके लीगल ये होते हैं एक्शंस वो लिए जाते हैं। So these two things are very important in medical coding company, PHI and the HIPAA. Next, next. Okay. A covered entity is any health plan, healthcare clearing house, a healthcare provider who transmit any health information in electronic form in a connection with a qualified transaction and their business associates. HIPAA affected areas are expected to adhere the HIPAA privacy and security rules. Okay. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर दैट वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की? इंश्योरेंस कंपनी की, कि वो अपने पीएचआई और हिप्पा को जो है वो अफेक्ट ना होने दे और वो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखे। तो पीएचआई इज अ प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड द हिप्पा इज द एक्ट टू protect the patient details. Data are individually identifiable if they include any of the 18 types of identifiers of an individual. 18 types of identifier होते हैं ओके पीएचआई के अंदर। सबसे पहला होता है नेम, एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ऐसे 18 कैटेगरीज होती है अंडर पीएचआई that will be maintained and the covered by the HIPAA. तो ये सारी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए। that will be always protected, so it is a protected health information and the act works on that is a HIPAA. Next, next slide. See what is in PHI. PHI is contain name, address, all elements except year of date related to an individual, including date of birth, admission date, discharge date, date of death, and the exact age if covers 89, telephone numbers, fax numbers, uh, email address. These are demographics all contained in PHI. Next, next. Now, electronic medical record. Okay. It is also called as USEMR, also called as the EHR is the electronic health record, or CPR is the computerized patient record. EMR system capture patient data, software integrities with other data resources. EMR assist in provider
Decision making, EMR captures data at the point of care using a database, rule engine and knowledge base as a primary sources of information, then integrates it with the other records of that members. Okay, EMR क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है. जब डॉक्टर पेशेंट को सर्विस देता होता है ना, तो वहां पर एक ट्रांसक्रिप्टर रखा हुआ होता है. वो ट्रांसक्रिप्टर सारी वॉइस रिकॉर्ड करता है और उससे एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनरेट होता है, एंड दैट द मेडिकल रिकॉर्ड विल बी प्रोवाइडेड टू द मेडिकल कोडिंग कंपनी. तो फंक्शन ऑफ EMR क्या होते हैं? पेशेंट चार्टिंग, चार्ट क्रिएट करना, ऑर्डर कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम, वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम बाजू में रखा हुआ होता है, उससे डॉक्यूमेंट और इमेज मैनेजमेंट जनरेट होता है, वो पेशेंट पोर्टल में डाला जाता है, एंड देन उसके बाद होता है स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्टिंग. ओनली 25% ऑफ प्रोवाइडर हैव अडॉप्टेड EMR. ओके, सारे डॉक्टर्स लोगों के पास EMR मशीन होती है क्या? नहीं, बहुत कम डॉक्टर्स के पास होती है, ओनली 25%. तो बाकी लोग सारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर के पास EMR है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा मेडिकल कंपनी को. ओके, नेक्स्ट. See that first slide we saw na, name, demographic entries. Okay, the next we have a device identifier number or serial number, web URL, IP address, biometric identifier including finger or voice prints, full face photographic images and any comparable images, any other unique identifying number, characteristic or code. All protected health information is subject to Federal Health Insurance Portability and Accountability Act HIPAA regulation. ये सारे 16 से 18 पॉइंट्स वहां पर रहते हैं, जो सारे होते हैं पेशेंट से रिलेटेड, और ये सारे प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जिसके ऊपर वो आता है HIPAA रेगुलेशन एक्ट के अंदर. ओके, तो इट विल बी regulated by the HIPAA regulations. Next. Thank you. If you have any doubt on any slide, you can ask, or any questions you want, you don't understand, you can ask me now. Thank you, guys. Hello everyone. Hope you understand the slides. Now you can ask the question about anything you want, you don't understood from the slide as well, or even if you have any doubt, another doubt, you can ask in Hindi or English, anything, please. Or in message also, in inbox you can message as well. So, ma'am, Yes, please ask. Yes. why only why HCPCS coding type is limited for Part A inpatient services? Part A inpatient services, because HIPIC codes, what is there for durable medical equipment. Okay, अगर पेशेंट आउट पेशेंट होता है, तो आउट पेशेंट के लिए हम कभी उसको व्हील चेयर या कोई ड्यूरेबल इक्विपमेंट देंगे क्या? नहीं, वो नॉर्मली आ रहा है, उसको नॉर्मल कंडीशन है और वो चले जा रहा है. लेकिन अगर वो इनपेशेंट है, उसको कुछ फ्रैक्चर हुआ है या उसकी कोई सर्जरी हुई है, तो उसके लिए डॉक्टर उसको एक मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है. तो मेडिकल इक्विपमेंट किसको प्रोवाइड कर रहा है? जो कि पेशेंट डॉक्टर के पास इनपेशेंट रहा है, और इनपेशेंट को अगर वो कोई ड्यूरेबल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर HIPIC इनपेशेंट सर्विसेज. इसलिए पार्ट ए में ही आपके HIPIC कोड बिल होते हैं और वो इनपेशेंट को ही दिए जाते हैं.
Sir, you understand now? My doubt is cleared. Thank you, ma'am. Any other doubt? Any? Please ask. Hello, sir. Please ask. Sir, after the completion of CPC course, the job are remote control, work from home or office. It depends on the company requirement. As of now, remote jobs are less. Most of the jobs are work from office. Yeah, ma'am can clarify this. Are you there? Yes, yes. Yes. Basically, in Corona period, na, they are providing work from home. But right now, many companies are asking to come to office and work from office. So we cannot give a surety like you will get a remote work like that. Maybe after 2 3 years of experience, you will get some ideas about the companies which are providing the work from home. So you can apply and you will get the work from home. But right now, there is many. Most of the companies are calling to office only. So वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अभी उतना ज्यादा नहीं है एंड फॉर फ्रेशर तो वो नहीं देंगे वर्क फ्रॉम होम एज पर माई थॉट्स जितना कि मुझे पता है तो फॉर फ्रेशर यू ऑलवेज वर्क फ्रॉम ऑफिस बिकॉज वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आफ्टर दैट आप जब ट्रेन हो जाओगे तो मे बी वो आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हैं बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी आपका अगर आप जाते हो मुंबई की किसी कंपनी में तो बेसिक सैलरी आपका 15 से 18,000 तक होता है okay. Yes, students. If you have any query, kindly ask. Is Samna audible? Yes. Yes. Okay. Ma'am, Yes. If you have any query related to the admission, please ask. And yes, admission still open till this Friday, and course fees is 5,999, and duration is 3 months. ma'am, your course is online or offline? Online. Okay, ma'am. Yeah. What will Hello, be ma'am. the schedule timing? Yeah, Hello? 4 to 6 p.m. every Saturday and Sunday. Yeah, hello. हेलो मैम जैसे कि पीवी में कोडिंग के मतलब पेशेंट इंफॉर्मेशन कोड करते हैं इंडिविजुअल केस रिपोर्ट में तो इस कोडिंग में
कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करिए आप। जैसे कि हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन कोड करते हैं एक फॉर्म में, हम्म। तो वो फॉर्म कौन सा होता है? मतलब पीवी में, फार्माकोविजिलेंस में इंडिविजुअल केस रिपोर्ट वैसा फॉर्म होता है, तो मेडिकल कोडिंग में कौन सा फॉर्म होता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, इनपेशेंट अगर होता है तो उसके लिए फॉर्म होता है UP04, और अगर पेशेंट आउट पेशेंट होता है तो उसका फॉर्म होता है CMS 1500। तो दो टाइप के फॉर्म यूज होते हैं मेडिकल कोडिंग में, डिपेंड्स ऑन पेशेंट इनपेशेंट है या आउट पेशेंट है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। Yes, ma'am, there is a one question. Actively hiring companies for medical coding. Actively hiring companies are Gaps in Mumbai, Access Healthcare, okay, Gaps in Aurangabad also, and in Chennai there are many companies which are hiring on regular basis. So we'll give you the ideas which company are taking the interviews and hiring. So mostly Gaps Mumbai hiring on the lots of basis like 100, 200. So we can refer you there. Yes, ma'am. Next question is, if age is about 35 years, then how much chances? About 35. Yeah. Actually, age is not decided, but 28 or 30 is the max age for the to get job in medical coding, like that. 28 to 30 minimum. About that, I don't think there will be a chances. Yes. Any other question? Can we pay the fees in installments? Yes, ma'am. There is another question. CPC certification is necessary for do job in medical coding company. CPC, no. You can be a fresher and you can join as a fresher with your basic medical coding certification. So you will get a job on that basis only. After that, you can do your certification from company side itself, or you can do by yourself. So it is not necessary to have a CPC certification to get a job in medical coding like that. So you can do after 1 or 2 years of experience in medical coding also. Okay. Next question. Is there a saturation in medical coding? No, there is no saturation like that.
Hello, ma'am. Yes. My graduation is not completed. That running now. Can I apply this course? CPC exam. On which year are you in the graduation? Be from second year, ma'am. Yeah, you can apply, but you will get job after completion of your graduation, because graduation is must for getting a job. So you can do your, course, but you have to apply after completion of your B Farm. Okay, ma'am. Yeah. Yes, ma'am, there is another question. Medical coding provides growth in future. Yeah, 100% it will provide a growth. If you are joining as a fresher and getting 15,000 salary, after 1 year you automatically get a growth of around 5,000 to 10,000 your salary, and will be promoted as a executive, senior executive. As per your knowledge, you can crack IJPs, so you will be a TL or assistant manager there. So there is definitely you will get a growth in future. Another question, how can we make a career in medical coding? Yeah. You can make a career by starting as a fresher. Okay, you will go as a fresher to the company, get a job, and after on your performance, you will get a particular career in your field, like in professional coding, like E&M coding, surgery coding. So you can get a best career in career in medical coding as per your hard work and your knowledge in a particular field or specialty. Yes, ma'am, there is another question. What are the difficulties faced by medical coders performing job regarding mediclaims because there are too many codes for different diseases? Difficulties, yeah, definitely in the starting phase as you are fresher, you'll get a difficulties in the claim, but when you get the proper knowledge and proper experience on that particular field, in future you will not get many difficulties. You can solve difficulties of your trainee students there. After 1 or 2 years, you will be a senior executive. So at that time, you will not face the difficulties for entering the codes for different diseases or procedures. You will be specific to that particular process. So for 1 year, around 1 year, you will face a difficulty, but after that, I don't think you will be on that phase. So for every claim, you will not going to face a difficulty. Different claim is of different severity or different stages of complexity. So it depends on the claim by claim what you are getting, like that only. Okay, ma'am, next question. Where does career growth stop in this? Career growth stop in this. Actually, career growth is stop as you will be a director of medical coding.
So that is the point where you stop your career. Like director is the I mean a higher field of medical coding. So after getting a director position, you can stop your career. Okay, ma'am. Next question. In medical coding, different departments are there. Surgery coder. So which one is better? Actually, better we cannot say this is better and this is not. But yeah, surgery coder having a I mean deep knowledge of particular thing. So if you are going for surgery coding, so it will be a better option. You will be a surgery coder, so you will get a much opportunities in future for surgery coders. So I think surgery coder will be having like better opportunities in future. But it is not like that. ENM is not good and like that. So everything is of importance in this field. Like ENM coding, STC coding, surgery coding, everything is having important at this place. Okay, ma'am. Next question. How much is the salary of a director coder? Director is not a he is not a coder. Director he is managing the medical coding department. So he is not a coder. But yeah, when the assistant manager or team leads having doubts, so he can solve. But he is not a coder. And the salary of director we cannot decide. But yeah, it will be a more than 1.5 lakhs like that. Okay. So we have to do surgery coding course separately or not? Surgery coding course separately, no. When you will go to the company will decide. I mean requirement on the basis of company's requirement, they will give you the training for surgery or for ENM or for radiology project. Anything. When they are hiring, they have the projects. Okay. When they have a radiology project, then they will train you for radiology. If they have surgery, then they will train you for surgery. So it will depend on the, I mean, positions for which they are hiring and the what will say like projects for projects they are hiring. So it depends on totally on their project. Yes, ma'am. Next question. What are the job positions in medical coding and what are the working days and shift schedule in company? Job positions start from the trainee coder, executive, senior executive, team leader, assistant manager, manager, director, like that. And working days are I mean, Monday to Friday, and shifts are different. You maybe work on the night shift also, and most of the companies providing the day shift only. Recently, we are getting a night shift coding job also. So day shift from 8 to 5, 8:30 to 5:30 will be shift timing, and 5 days is a working day. Okay, ma'am. Thank you. Next question. Is there work-life balance in medical coding? Work life balance is depends on you only. You are going to work for 12 hours, then how can you balance? Only in 9 hours you can complete your work and you are going to home. So in that only you can I mean balance your both lives. So I think work life balance means it totally depends on your efforts. So and if one cannot do anything, it depends on the workload, it depends on your speed.
It will be on your hand. Okay, ma'am. Next question. How many years do you think it will take to become a director? Yeah, see, seriously, I don't know about this because the director is a big position and we need to crack the IJPs for TL and assistant manager, then only you will go to the director position. So around the 15 years of experience will be required, I think, to get become a director of the company. Yes, ma'am. Next question. The schedule is fixed for daily or we have to do extra work depend upon project. Schedule is fixed means if 8 a.m. is your reporting time, so you have to report on 8. And if there is extra work or extra, extra charts will be there, extra workload is there. So in that case, you need to work for extra 1 hour or 2 hours on our Saturday. It will be depend on the, on the claims which received from the provider. Yes, ma'am. Next question. If a person is a from another field and has done medical coding course, would you offer him a job? Another field means which type of field? BSc in which specialty? BSc, ma'am. BSc. BSc Maths. Actually, I don't think BSc Maths will be, uh, applicable. But right now, some engineering student also taking a medical coding classes and getting a job. So right now in the days like you can prepare for medical coding course, but you need to have a knowledge of science field like anatomy, physiology, all that thing. If you have good knowledge, then you can take up this course and go in this field. Yes, ma'am. Next question. What benefits other than salary will be provided by the company? Benefits means health insurance, accident insurance. They will provide you. Benefits other than salary means only insurance company will provide. Other than this, nothing is there. Okay, ma'am. Next question. What are the different certification in medical coding and how prepared for the exam? As I told you, CPC, CCS are the certification, and you have to prepare for exam by taking the classes. From yourself, you cannot take up the exam because there are many different guidelines. There are different systems, different guidelines for particular system. So you have to take up the classes for the exam, CPC or CCS. Only after that you can be able to give exam.
Okay, ma'am. Next question. If we want to work in another country, how can we go there? Another country you can go, but depends on your, what we say, depends on your experience, because in another company, another country, they are working on payer side mostly. So in our side only we are working for providers. So you need to have a payer side experience also to go in the another country and work there. Ma'am, next question. Scope of medical coding in Gulf countries. There is a scope, but I said na there knowledge needed of payer side coding. You, if you want to go in the Gulf countries, so you have to have a experience in prayer side coding also. Only in that way you can go to the Gulf countries. Yes. Any other question? Yes, ma'am. Next question. Which position has to be active for pair side experience? Position, there is no specific position. I'm just saying like experience. If you are working in payer side company from last 1 year and you are in the junior executive or senior executive or QA level position, so you can directly apply. Nothing like position is not needed. We need experience only. Yes. Any other question? Yes. Any other question? Yes, and one thing I want to tell you that this is the first class and it was free. But for all next classes, you need to enroll for the course and admission open till coming Friday. So if you want to enroll, kindly message me or call me on the given number. Yes. Any other any other question?
Yes. Any other question? And our WhatsApp group is open. You can ask your questions there as well, or messages after this class ends. Yes, ma'am, there is one question. What will happen if we draw the agreement period? Who will draw the agreement period? Which type of agreement period you are asking? Yes, Bhumesh, are you there? I think he's talking about the bond. Bond Company's means agreement okay, period. work bond. Yes. There is no agreement in this field actually. When you are taking up CPC exam from company side, the company will pay for the exam. Only that time they will take a bond of 2 years. Other than there is no agreement in the medical coding. Hello. Yes, Hello. Ma'am, are you getting my voice? yes, yes. Yes, ma'am. If it is gap in the education, means not in education, in professional background because of the family circumstances, so is it possible to get a job? Miss, I mean 3 years gap or 4 years gap. How many years of gap you have? 3 years gap. Sorry, 3 years. Years. And which I mean degree you have, like B BS, Farm. Yes. B Farm. Previously you are working somewhere? Yeah, yeah. Oh, Sorry. previously you have work experience, or you will work somewhere like that? That is in another pharma company, but 4 years of experience I have. Previous experience. You have 4 years of experience and gap is there, right? Yeah, is there right? Yeah, you can apply for the job in But medical you are coding. saying that above age 20 and 30, you will not get the job like that's why. About 30, I don't think you will get, but you can try once because you have previous experience. On that basis, they will give If it you is a in job like other that. domain, so it is not countable. Is it right? No, no, other field experience is not countable. Only medical coding experience is countable. Yes. Yes, ma'am. Next question. What software is used in medical coding? I can't tell you the software used in medical coding. When you will go to the company will tell you which software you have to work on. Okay, so it is, I mean, protected information. I cannot share with you here. Okay, ma'am. Next question. Do we only work on ICD-10 in medical coding? I only ICD-10, CPT, HIPAA, all is required in medical coding. We cannot give only diagnosis code to the patient and procedure. What about procedure? We need to procedure code also to enter in the medical record. So we need a particular CPT code, ICD code, and HIPAA codes also in medical coding.
Yes, ma'am. Last question. What are the guidelines for medical coding? Guidelines, there are many guidelines actually. We will see guidelines in our next classes for ICD-10 guidelines, CPT guidelines. For every chapter, there are different guidelines. So not a particular one guideline is there. So we cannot say, na, this is the guideline for medical coding. For different chapters, there is different guideline. Yes. Yes, students. If you have any question, you can ask in group. So hello everyone. Hope your all queries are solved and you got the sessions. And from next, I think the next, what should be the next chapter, ma'am? Can you tell? Next chapter. I will tell you actually right now I have not decided. I will tell you by tomorrow which chapter will Okay, start. okay. We'll share in the group, class group tomorrow, the chapter next. And also one information, you have to fill the forms as well. We will give it to you in the class group, whoever taken admission for this. And I will share you the roll numbers, allot you roll numbers as well. So in the class, we will share whatever the task is there, anything from your end. So accordingly, you have to respond. And for the admission, if you have any query, you can ask in the group. We already created a group. So till Friday, the admission is open, and we open all the groups WhatsApp for a discussion. Any career opportunities, even course, and any kind of the medical coding related information. बहुत सही है Okay. ने ला के दिया था पता नहीं कौन पड़ोस में पीछे वाली गली में से दे गया था कोई Okay. So thank you all of you for joining this session, every participant, and thank you, ma'am, for delivering wonderful session. I hope this session will got everyone got it properly. Okay. So for this, you go through the recording, update yourself in the next class as well. We will ask some questions related to the previous class. So be proactive throughout the class. Okay, we will tell you everything step by step. But as soon as we share any information, you have to respond like any task, any given assignments we will give in between. So you have to submit in a given time. Okay. So thank you, everyone. So we conclude this class. If you have any question, you can ask in the group. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Yes, we conclude the session. You can leave.